Hello everyone, this is Dr. Poonam Almadi, Assistant Professor in Computer Science at Government College for Women, Faridabad. Dear students, today we are going to learn about MS Excel. MS Excel is a spreadsheet software which was developed by Microsoft and it is a part of MS Office suite. MS Excel is an application software which is used to organize, manipulate and analyze large amount of numeric data quickly and easily, which is not possible in a manual worksheet. In this lecture, we will learn how to manage the workbook, how to manipulate data, how to edit data, formatting of spreadsheet, and how to take the printout of that. To start MS Excel, click on the start button. Here you can see this is the start button. Click on it, then click all programs, then Microsoft Office and choose Microsoft Excel. Microsoft Excel application open in a new window with a blank workbook named Book 1 by default. Excel window is very similar to Word window. Here you can see it has features like title bar, menu bar, ribbon, which were also available in Word window. But unlike Word, working area. Here you can see this is the working area. Working area of Excel window is divided into rows and column. This is a major difference. The file we create and save in Excel is known as workbook. By default, a workbook is consist of 3 worksheets. As per our requirement, we can increase the number of sheets, we can delete them, and each worksheet can be given a specific name and later on it can be renamed also. Once we delete a worksheet, it cannot be recovered. And each spreadsheet is consist of a grid of horizontal and vertical lines like this way. Here we can see this is the row and this is the column. Row represent data horizontally. This is a row. 1, 2, 3, 4, 5, like this way. Rows are represented by numbers along the side of the sheet. They represent data horizontally. While this is the column A, B, C, D. They are represented by letters across the top of the sheet. Here, cell. What is cell? Examination point of view say sometime examiner asks what is cell? Cell is the intersection between a column and row. Here, this highlighted part. This is known as the boundary of highlighted cell. This is known as cell pointer. And B2, this is the cell address. Each cell has a unique address to refer it on the worksheet. It is a combination of column name. Here you can see the column name is B. So it is a combination of column name followed by the row number. Row number is B2. 2 तो कॉलम अगर हमारा है बी रो है 2 तो सेल का जो एड्रेस है दैट विल बी B2 and this is active cell. A active cell is a cell with a highlighted boundary. This is cell, all these are cells, but this is active cell as it has a highlighted boundary and it is used to enter or edit data in a worksheet. Here we can see these are the columns A, B, C, D like this way and these are the rows 1, 2, 3, 4, 5 and there are sheet 1, 2, 3 and this address particular suppose मैं यहाँ पर एक cell को click करती हूँ then the address will be A1 B2 like this way address is given. In Excel we work in a workbook. So to create a new workbook, we can
click on file menu and click on new. Such type of screen appear. This is the workbook. There are sheet 1, sheet 2, sheet 3. I can increase the number of sheets, I can delete, as well as I can rename these sheets. Here you can see I have entered the data. This one, see this one, cell A1, B1, C1, D1, E1, ये जो 5 सेल हैं, where it has I have written sales report. इसमें आप देख रहे हैं कि इस सेल्स को मैंने क्या किया है, मर्ज. यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है by which we can merge. Later on we will learn practically it also. These are the some of the data which I have entered. We will learn how to enter the data also. Once the data is entered, we can save the workbook as per location, either on desktop or documents, and by giving a specific name. And later on we can reuse the existing workbook, and for this we will open and लास्ट वी विल क्लोज द वर्कबुक. इस तरीके से मैंने आज एक वर्कबुक अपनी बनाई, उसमें कुछ डेटा डाला, उसको सेव कर दिया, वर्कबुक को क्लोज कर दिया. तो एक पर्टिकुलर वर्कबुक को बनाने के बाद उसमें बहुत सारी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, वो सब हम बार बार कंटिन्यू करेंगे. तो बेटर यही है कि वंस वी क्रिएट ए वर्कबुक, सेव इट ऑन आवर डेस्कटॉप और आइदर इन सी डॉक्यूमेंट और C drive, D drive at per our convenience. So we will learn practically how we can enter the data. जब मैं एक्सेल में नई फाइल को ओपन करती हूँ तो मेरे को वर्कशीट इस तरीके से अपीयर होती है. सपोज हियर I have written EXPENDITURE. Next, month, Jan, Feb, March. I want to enter such type of data. So to enter such type of data, there are two ways. Either I have to click on the cell and start typing, or either I can use another way, type into the formula bar. For that, we click on a cell, then click in the formula bar. Here is the formula bar, and type the data into the bar and press enter. By any way, we can enter the data and save it. Next is editing. Editing means making changes in the cells of a worksheet. There are a number of commands that can be used to make changes in all the contents. For example, we can use undo and redo command. Undo command reverse the last action performed, while redo command reverse the undo command. We will learn it practically later on. To delete cell content, we will select the cell and press the delete की. तो जो मेरा सेल का कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा. ऐसे ही एक्सेल के अंदर जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था, सिमिलर वे एक्सेल हैज 3 कमांड्स, कट, कॉपी, पेस्ट, विच हेल्प टू कॉपी एंड मूव सेल कंटेंट इन ए वर्कशीट. एक्सेल में एक और फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्ट स्पेशल, जिसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. सो to insert row or column, we can select a cell, right click on it, sub menu appear, select the option insert, dialog box appear, and we click the desired option and click OK. Row and column can be inserted. So by this way, editing means once I have created a worksheet, लेटर ऑन आई वॉन्ट टू चेंजेस, तो वो चेंज मैं कई तरीके से कर सकती हूँ. सपोज यहाँ पर 4 कॉलम अभी मैंने लिए हैं, ABCD. अब बाद में मुझे लगता है, लेटर ऑन मुझे लगता है कि नहीं, B और C में मुझे एक और मंथ ऐड करना है.
वो भी एक तरीके का एडिटिंग है। मुझे कोई रो इंसर्ट करना है, वो भी एक एडिटिंग है। सपोज यहाँ पर आई हैव टेकन द वैल्यू 18 और उसको मेरे को चेंज करना है 14 में, तो ये भी क्या है, एडिटिंग। इट ऑल कवर्स एडिटिंग। तो इन दिस एग्जाम्पल मैंने एक फाइल बनाई हुई है, उसको दोबारा से ओपन किया है और हम ये एज्यूम करते हैं ये वाला जो दिस इज द हाईलाइटेड सेल, इसका एड्रेस हुआ D4, D इज द कॉलम एंड 4 इज द रो। सो सेल, इस सेल का एड्रेस बना D4। इसके अंदर जो हमको वैल्यू दिखाई दे रही है इट इज 18। मेरे को क्या करना है, आई हैव टू एडिट दिस 18 टू 14। तो आई विल यूज बैक स्पेस की टू डिलीट 8 और दोबारा से मैं टाइप करूंगी 4 और एंटर करूंगी, तो अब मेरी जो वैल्यू हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। इस तरीके से एक बार एंटर किए हुए डेटा को लेटर ऑन आई कैन एडिट। इसी तरीके से हम सेल में ऑलरेडी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, सेल के कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। मैं एक सेल के कंटेंट को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकती हूँ। एक सेल के अंदर अगर सपोज मेरे को B3 सेल से डेटा को मूव करना है B5 पर, उसके लिए भी मैं एडिट में जाऊंगी, कट करूंगी और दूसरी जहां पर मेरे को पेस्ट करना है उस सेल को सेलेक्ट करूंगी और वहां पर पेस्ट कर दूंगी। बिफोर ये एक फीचर है एक्सेल का, ऑटोफिल एंड कस्टमाइज्ड लिस्ट। इसको बताने से पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, फिर हम इस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे कि हमने वर्ड में फॉर्मेटिंग की थी कि बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना, इसी तरीके से एक्सेल के अंदर भी मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं formatting के। in MS Excel also numerous text formatting options and number formatting options are available। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है कि हाउ टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ कॉलम, कि सपोज मेरे पास जो कॉलम की विड्थ है वो मुझे इंक्रीज करनी है, तो मैं कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ वो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। कि सपोज हमारे पास मूव द माउस पॉइंटर टू पोजीशन कॉलम B as shown in the column header, this is the column B। When the black cross appears, hold down the left button and drag the mouse to the right to increase the column width by the required amount। एक तरीका ये होता है, हम यहाँ पर आए, ये इसकी पोजीशन चेंज होती है और इसको ड्रैग करते ही इसकी विड्थ इंक्रीज हो सकती है। दूसरा तरीका क्या रहता है, क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू, क्लिक कॉलम एंड देन क्लिक विड्थ। तो हम यहाँ से अपनी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट पर जाके कॉलम को ऐड कर सकती हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम को मैं डिलीट कर सकती हूँ। नेक्स्ट मैं रो को इंसर्ट कर सकती हूँ, रो के कंटेंट को डिलीट कर सकती हूँ और अंडू और रीडू भी कर सकती हूँ। इधर से आप देख सकते हैं कि जैसे हम वर्ड में भी क्या कर रहे थे, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे तो रो, कॉलम इस तरीके से ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि सबका सब जो वर्क एरिया है दैट इज वर्कबुक, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और जो कि हमारा बना हुआ है रोज एंड कॉलम से, और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहला रहा है, सेल कहला रहा है। तो सब कुछ हमारा सेल पर बेस्ड है। मैं रो इंसर्ट कर सकती हूँ, रो डिलीट कर सकती हूँ, कॉलम इंसर्ट कर सकती हूँ, कॉलम को डिलीट कर सकती हूँ। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। ये अभी हम सब प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स है, डेटा ऑटोफिल। ऑटोफिल फीचर अलाउ अस टू फिल predefined series or you can say inbuilt series across a row or column, and there is custom list, they are user defined list which can be created and we can use. I will tell you these two features, they are very interesting features, autofill features as well as how to create customized list, we will learn it practically। तो अभी और कुछ आगे करने के लिए एक्सेल में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जैसे हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं
एक्सेल ऑफर्स 3 ऑप्शंस। मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकती हूँ, टेक्स्ट को ओरिएंट कर सकती हूँ, टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो इस फीचर्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, फिर हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एक्सेल में हम काम कैसे करते हैं। ये मेरा एक्सेल की वर्कशीट है। यहाँ आप सभी देख रहे हैं कि शीट 1, शीट 2, यहाँ मैं प्लस करती हूँ तो शीट 3 इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर मैं इजर, डिलीट, रीनेम, ये सभी ऑप्शंस मेरे पास हैं जो मैं कर सकती हूँ। दिस इज द सेल एंड suppose I have selected, highlighted, this is the active cell. Okay, so its address is, column number is H and row number is 6. So here you can see the address H6. जैसे ही मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूंगी, suppose I have taken F, so column is F and row is 4. तो एड्रेस जो है यहाँ आप देखिए एड्रेस बन गया F4. ओके, मैं how I can increase the width? Suppose this I will drag, it will increase the width. If I have to increase row wise, select, it will increase row wise also. And suppose अब मुझे कुछ भी सेलेक्ट करना है, डेटा को एंटर करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है, wait for 2 minutes. So first we will learn how to select a cell. So we can select cell in different ways. First, suppose I have to select a single cell. जैसे मैं अभी एक सिंगल सेल को सेलेक्ट कर रही थी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये सारी वर्कशीट है, इस पे कहीं पर भी किसी भी सेल पे क्लिक कर दो। एट द सेंटर ऑफ द सेल a thick border appear around the cell which shows that it is active cell, कि हमारी सेल सेलेक्ट हो गई। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सेल को क्लिक करना है सेंटर में, तो सेलेक्ट हो जाएगी। टू सेलेक्ट ऑल सेल्स, ये जितनी भी सेल्स हैं इन ए वर्कशीट, जस्ट क्लिक सेलेक्ट ऑल। अगर मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगी तो ये पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे सपोज इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है, टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम, जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर ऑफ द कॉलम यू वांट टू सेलेक्ट। अगर मुझे सी वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे किसी रो को सेलेक्ट करना है, टू सेलेक्ट एन एंटायर रो, सपोज मेरे को 6 नंबर की रो को सेलेक्ट करना है, to select an entire row, just click on the row header of the row you want to select. I will select this, this will be selected. To select a range of cells, point at the first cell. Suppose मेरे को एक रेंज को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, I will point at the first cell, then click and drag the mouse diagonally to the last cell in the range. मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। और टू सेलेक्ट range of cells which are not adjacent to each other or which are not next to each other. Suppose यहाँ वाली कुछ सेल मेरे को सेलेक्ट करनी है और कुछ मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो अगर दोनों सेल्स एक साथ नहीं है, दूर दूर हैं, एडजेसेंट नहीं है, तो उनको भी सेलेक्ट किया जा सकता है एक साथ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल, देन प्रेस द कंट्रोल की। कुछ मैं यहाँ मैंने सेलेक्ट की कुछ सेल्स को, फिर मैं कंट्रोल की को प्रेस करूंगी एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट रेंज ऑफ सेल। इस तरीके से मेरे दो अलग अलग दूर दूर जो सेल हैं वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जब आपका डेटा सेल जो है सेलेक्ट हो गई, अब हम उसके अंदर क्या करेंगे, डेटा को एंटर करेंगे। टू एंटर डेटा इन ए सेल we will select the cell। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना होगा एंड डबल क्लिक ऑन इट टू गेट द कर्सर फॉर टाइपिंग। सपोज मेरे को डबल क्लिक करूंगी तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया ना, और आई कैन यूज द एरो कीज टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। सपोज यहाँ मैं लिखती हूँ लाइक दिस वे नेम, एरो की कैसे मैंने क्या लिखा, अब रोल नंबर, दिस वे आई कैन यूज द एरो कीज। और इसमें हम 3 तरीके का टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा
एंड फॉर्मूला। टेक्स्ट मीन्स, यहाँ पर आप देखिए, दिस इज टेक्स्ट. Text means all kinds of data like numbers, alphabets, as well as space in between. When text is entered, it is displayed in the cells as well as in the formula bar. This is a formula bar. अब मैंने यहाँ पर B टाइप किया है तो B, सपोज मैं पूरा ही नेम दे देती हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. सपोज नीना, यहाँ मैं दे देती हूँ पूजा. तो जो टेक्स्ट आपका इधर आ रहा है वही टेक्स्ट इधर आ रहा है. ओके. यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करती हूँ एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस. वर्ड में हमारे पास ये फीचर अलाइनमेंट हमने वर्ड में भी किया था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा फीचर्स अलग है. सपोज आई हैव सेलेक्टेड 101 एंड दिस वाज द लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज सेंटर अलाइनमेंट, दिस इज राइट अलाइनमेंट. मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी विड्थ इंक्रीज मैंने कर दी है. अब ये सेल जो मेरी सेलेक्टेड है, अगर इसको मुझे ऐसे करना है, यहाँ लाना है, आप देख रहे हैं टॉप पर लाना है, इसको मुझे बीच में लाना है, इसको मुझे राइट साइड पर लाना है. तो इन 3 अलाइनमेंट के अलावा ये वाले अलाइनमेंट भी अवेलेबल है. ओके, दिस वन, दिस वन. आप इसको भी देख सकते हैं. मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ. एंड आई यूज दिस वन. आप ये देखो इस सेल के सेंटर में हमको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दिस. और अगर मैं यहाँ क्लिक कर लेती हूँ तो मुझे ये यहाँ दिखाई दे रहा है. और अगर मेरे को ये भी बीच में देखना है तो मैं यहाँ जाके, अब ये एग्जैक्टली सेंटर पर आ गया. ये सारे ऑप्शंस हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज ये 5 सेल्स है, हमें क्या करना है, इनको मर्ज करना है. तो हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे तो ये हमारा मर्ज हो जाएगा. ऐसे ही हमारे पास एक और फीचर है यहाँ पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करने के लिए मैंने पहले से ही एक शीट में कुछ डेटा रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए. उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सपोज ये मेरे पास कुछ नंबर है. ओके, और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने शीट 2 पर, जब मैंने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. ऑल, फॉर्मूला, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन, ऑपरेशन, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन. अगर मैं ऑल पे क्लिक करती हूँ तो ये इस तरीके से मेरा डेटा कॉपी हो गया. अब सपोज मेरे को क्या करना है, आई हैव रिटन 10, 20, 30. ओके, और मुझे क्या लगता है कि ये 10, 20, 30 जो मैंने नंबर लिखे हैं, इसमें मुझे 2 प्लस कर देना है. ओके, तो मैं क्या करूंगी, एक मेथड मैनुअल तो हम क्या सोचते हैं कि हमने 10, 20, 30 लिख दिया है, जबकि हमें लिखना चाहिए था 12, 12, 22, 32. तो इसको डिलीट करूं, देन राइट अगेन. इसकी जगह हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये मैंने सेलेक्ट किया, यही मेरे नंबर्स थे, इसको मैंने कॉपी किया. यहाँ मेरे को इनको चेंज करना है. आई विल सेलेक्ट पेस्ट स्पेशल ऑप्शन एंड हियर इज द ऑप्शन ऐड. जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो मेरा एडिशन हो गया. ये मैंने आपको एडिशन करके दिखाया है. इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सपोज दिस इज 10, दिस इज 30, दिस इज 50 एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई बाय देम 4. 4 से मुझे
मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इन नंबर्स को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ मैं गई पेस्ट स्पेशल पर और मेरे को मल्टीप्लाई करना है। Here the number is multiplied. Is it clear to everyone? इसी तरीके से शीट 1 में सपोज मेरे पास ये 4 हैं, ये बोल्ड है, and I have done some formatting also, bold, and I have copied this data. All. If I select all, तो मेरा जो मैंने कलर चेंज किया था वो भी पेस्ट हुआ है। लेकिन अगर मैं पेस्ट करती हूँ पेस्ट स्पेशल में, ऑल ना क्लियर करके मैं पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ वैल्यूज को कॉपी करती हूँ, तब आप देख रहे हैं कि सिर्फ वैल्यूज कॉपी हुई हैं, कोई भी टेक्स्ट बोल्ड या फॉर्मेटिंग जो पीछे अवेलेबल थी वो कॉपी नहीं हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो ये नंबर है, सपोज दिस इज द नंबर, और यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस है, एक है जनरल नंबर। जैसे ही मैंने नंबर को क्लिक किया यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ गई, 0.00। ये यहाँ पर आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, इनकी हेल्प से मैं डेसिमल को डिक्रीज भी कर सकती हूँ और इंक्रीज भी कर सकती हूँ। थर्ड है हमारे पास करेंसी। अगर मैंने इसको करेंसी को चूज किया तो यहाँ हमारे पास करेंसी का सिंबल आ गया और मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। सपोज हमारी जैसे कंट्री इंडिया है, तो हम देखते हैं आई कहाँ पर है, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज, जिस भी कंट्री की जो करेंसी है उन सब के सिंबल यहाँ अवेलेबल हैं। फ्रेंच में, जर्मन में, जैसे हमारा इंडियन जो करेंसी है वो रुपीज है, इंग्लिश दिस वे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो ये रुपीस का सिंबल आ गया। तो अगर मुझे किसी और कंट्री की करेंसी डॉलर या इस हिसाब से सेलेक्ट करना है तो मैं उस हिसाब से करेंसी को ले सकती हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास है बच्चे शॉर्ट डेट, डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज को चूज करूंगी तो ये परसेंटेज आ जाएगा। हमारे पास शीट 1 में एक ऑप्शन था, इधर देखिए डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके कॉपी करती हूँ और यहाँ पेस्ट करती हूँ, और इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हैं हमारे पास इसके स्टाइल को लिखने के लिए भी। डेट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज, टाइम, टाइम के हिसाब से हम AM PM वो कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर है कि यहाँ पर आप देखिए कॉलेज नेम GCW फरीदाबाद, फरीदाबाद। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को डुप्लीकेसी को चेक करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकती हूँ। जैसे मैं एक शीट और ले लेते हैं हम इसको समझने के लिए। सपोज आई हैव टेकन marks, name,
एक क्लास में कई बच्चों के सेम मार्क्स हो सकते हैं और हमें हाईलाइट करना है कि अगर दो बच्चों के मार्क्स डुप्लीकेट हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से उनके मार्क्स लेस है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक ऑन हाईलाइट सेल रूल। अब अगर मेरे को सिर्फ डुप्लीकेसी को चेक करना है, देन हाईलाइट सेल रूल्स, इधर हमारे पास एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट वैल्यूज, और यहाँ आप देख रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज कलर्ड हो गई, और कलर के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि रेड करने से कलर से वी वांट टू फिल, येलो कलर वी वांट टू फिल इन दिस वे। और अगर मेरे को इसी में ही लगता है कि मुझे लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन को भी अप्लाई करना है, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया है, वी हैव टेकन 23, 45, 67, तो मैं ले लेती हूँ कि अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन है 50 से, तो वो हाईलाइटेड हो जाए। तो हमारे पास एक ही है 67, वो हाईलाइटेड होना चाहिए ग्रेटर देन, और यहाँ हम वैल्यू दे देते हैं ग्रेटर देन 50, और उसको कलर कौन सा दे देते हैं, वी विल सेलेक्ट ग्रीन कलर। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने वैलिडेशन लगाया है 23, 45, 67, 23, ये हमारे मार्क्स थे। पहला वैलिडेशन लगाया कि अगर दो बच्चे जिनके सेम मार्क्स है, डुप्लीकेट मार्क्स है, कि दो बच्चों के सेम, इसके भी ये एड्रेस हमारा बना E9 एंड E12, दोनों के मार्क्स बोथ हैव सिक्योर 23 मार्क्स, तो ये हमारे सेम कलर में हाईलाइटेड हो रहे हैं। सेकेंड वैलिडेशन मैंने लगाया था कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 50 से ग्रेटर देन मार्क्स हैं, तो उसका टेक्स्ट इस कलर का अपीयर हो जाए। तो एक ही टेक्स्ट के अंदर मैं एक से ज्यादा वैलिडेशन लगा सकती हूँ। इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं, सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस, आई हैव डन कॉपी, if I paste, then that formatting has been copied also. And one more thing, suppose this name I want to write in different style, so here is option available, vertical text in this way manner, or this way angle clockwise, इस तरीके से there are a number of ways, rotate text up, rotate text down, इस, और यहां से मैं कलर कुछ भी इसके अंदर चेंज कर सकती हूँ। सपोज ये बी और सी, ये एक कॉलम है, इन दोनों कॉलम के बीच में मुझे कुछ एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पे जाकर इंटायर कॉलम इट विल बी इंसर्टेड। मुझे 5 और 6 के बीच में कोई रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट, we can insert the row also, and one more thing I have told this, and this formula auto sum we will cover in next class। इस क्लास में डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है, डेटा को एंटर कैसे करना है, डेटा को एडिट कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, वो बेसिक मैं आपको कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड व्यू, देखो टाइम को सेव करने के लिए मैंने एक डेटा लिया है, ये फुल फ्लैश डेटा है, देखो काफी बड़ा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसका प्रिंट व्यू अगर मुझे देखना है, तो बेटर है व्यू में जाके अगर मैं पेज लेआउट में देखती हूँ, तो ये मेरे को जैसे वर्ड के पेजेस दिखते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, उसी तरीके से मेरे को ये पेजेस की तरह दिखाई देगा। और अगर मुझे इसका प्रिंट लेना है, ठीक है, सपोज
अगर मुझे नॉर्मल करना है तो मैं नॉर्मल पे चली जाऊंगी, मुझे पेजेस की फॉर्म में चेक करना है कि मेरे कितने पेजेस हैं तो मैं पेज लेआउट पर जा सकती हूँ। और सपोज मेरे को लगता है कि मुझे सिर्फ इतने एरिया का, ठीक है, यही जो सेलेक्ट इसी एरिया का मुझे प्रिंट आउट लेना है, तो उस सिचुएशन में हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के अंदर हम प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। आई हैव टेकन चूजन सेट प्रिंट एरिया एंड नाउ वी विल चेक द प्रिंट प्रीव्यू। Here you can see only this part, okay, and सपोज अगर मुझे इसको प्रिंट एरिया को क्लियर करना है तो मैं यहाँ जाके प्रिंट एरिया पे सेट भी कर सकती हूँ और उस प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर सकती हूँ, ठीक है। और जैसे वर्ड में हमारे पास ऑप्शन थे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। मार्जिन वाले भी तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, नॉर्मल, वाइड, नैरो, वो एज इट इज जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में वर्ड में सीखा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेन जो इसका फीचर आता है वो प्रिंट एरिया का आता है। मान लो पूरा अगर ये शीट है एज इट इज, जैसे ये शीट है, इसका अगर मेरे को प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं 24 पेजेस ये दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये पेजेस दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे कुछ सेलेक्टेड पार्ट लेना है तो उस सिचुएशन में मैं प्रिंट एरिया को सेट कर सकती हूँ, दूसरे एरिया को ऐड टू प्रिंट एरिया मुझे करना है तो मैं यहाँ जाकर ऐड भी कर सकती हूँ और फिर मैं जाकर वापस प्रिंट प्रीव्यू में देख सकती हूँ कि मेरे को किस तरीके से प्रिंट आउट अवेलेबल हो पाएगा, ओके। कई बार हमारे पास क्या होता है, सपोज यहाँ इस तरीके से जो हमने प्रैक्टिकल सीखा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें उसका प्रिंट आउट लेना है तो हम क्या करते हैं कि इसकी विड्थ को सेट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ थोड़ा कम कर दें ताकि ये एक ही पेज पर आ जाए। तो एक और ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है जिससे कि हम इसकी सेटिंग बड़ी इजीली कर सकते हैं और वो है हम जाएंगे साइज, फाइल, प्रिंट, यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन हमारे पास आ रहा है स्केलिंग का। स्केलिंग को अगर मैं सेलेक्ट करूंगी, फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, इस तरीके से सेलेक्ट करके मेरे को एक ही पेज पे मिल जाएगा। और एक ऑप्शन और भी हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है कोलेक्टेड। सपोज मेरे पास जैसे यहाँ पर 5 पेजेस हैं और मेरे को 5 पेजेस के 5 सेट बनाने हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे अलग अलग सेट कंप्लीट हो जाएं। तो उसके लिए अगर मैं ये वाले ऑप्शन को चूज करती हूँ तो मेरे को सेट बनकर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक हमने देखा है कि एक्सेल में कैसे हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कैसे हम एंटर कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। अब मैं जो अपना पावर पॉइंट के थ्रू आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करा रही थी, लेकिन थ्योरी करने से पहले मैंने बीच में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताया ताकि आपको पता चल पाए कि एक्सेल में काम कैसे होता है, ताकि हम आगे मूव कर पाए। ओके, तो हमने एक्सेल में यही मैंने आपको बताया कि जब हमने एक्सेल को स्टार्ट किया, दिस वाज द वर्कशीट, रो, कॉलम, दिस वॉज द वर्कबुक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, मैंने आपको बताया कि कैसे हम
शीट को इंसर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन सी एक्सेल प्रोवाइड्स फॉर इंसर्शन, डिलीशन ऑफ सिंगल, मल्टीपल रोज, कॉलम्स इन ए शीट, बट इट डजंट फिजिकली इफेक्ट द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इन ए शीट. हमने ये भी सीखा कि हाउ द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ कैन बी modified as per our requirement. So we learn how to open the existing workbook, close the workbook. हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि डेटा को कैसे एंटर कर सकते हैं. मैंने आपको बहुत सारे तरीके, बहुत सारे एग्जांपल्स दे के डेटा को ऐड करके बताया. तो आप भी अपने तरीके से छोटी सी टेबल बना के डेटा को ऐड कर सकते हैं. ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया है. एडिट करके भी मैंने आपको बताया कि कैसे हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं. मैंने आपको डेटा को कॉपी करके, मूव करके भी दिखाया, पेस्ट स्पेशल करके दिखाया, और यहाँ पर हमने आपको फॉर्मेट करके कि कैसे उसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, कैसे मैं डिलीट कर सकती हूँ, रो को इंसर्ट कर सकती हूँ. ये सारा का सारा जो बेसिक है ये अभी हमने प्रैक्टिकल किया है. मर्ज मैंने आपको करके बताया कि 2 या 4 सेल्स को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं. और यहाँ पर रैपिंग टेक्स्ट भी मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से, सपोज मैंने लिखा हुआ था एग्जाम्पल में, मैंने आपको बताया GCW, देन हम उसको रैप कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं. तो टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं. और एक और तरीका भी है, देयर इज वन अनदर वे आल्सो, कि इफ यू क्लिक अलाइनमेंट ऑप्शन, तो इस तरीके से यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमें एंगल की फॉर्म में दिखाई देता है. जैसे ही मैं इसको ड्रैग करती हूँ ना, तो वो टेक्स्ट उसी एंगल के हिसाब से ड्रैग हो जाता है. लास्ट में मैंने आपको प्रिंट आउट वाला ऑप्शन भी बताया कि हमारे पास एक्सेल में जो है शीट, तो अगर मेरे को देखना है कि हाउ मेनी पेजेस आई हैव, तो मैं व्यू में जाके देख सकती हूँ. और अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर रोज को ही प्रिंट आउट लेना है, तो मैं एरिया को सेट भी कर सकती हूँ और क्लियर भी कर सकती हूँ. ये आज जो हमने कवर किया है, ये MS एक्सेल का, दिस वाज ओनली द बेसिक पार्ट. MS एक्सेल के 2 और इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे से फीचर्स हैं. वन इज फॉर्मूला एंड अनदर इज फंक्शन एंड क्रिएटिंग चार्ट. तो in my next class, first we will cover function and formulas. In the next class we will cover Excel. Thank you.